So dear students, today our topic is kinetics of first order reactions. So first order reaction क्या होती है हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. मैं फिर भी थोड़ा सा आपको इसका डिफाइन कर देता हूँ कि कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर तब होगी अगर उस रिएक्शन का रेट जो है किसी एक कंसंट्रेशन टर्म पे ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. मीन्स अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली one concentration term. So suppose we have a reaction A is going to form P, that is A is a reactant and P is a product. So suppose initial जो concentration है हमारी A की वो क्या है, small है. When T is equal to 0 means initial concentration जो है वो क्या है उसकी A है. Okay, तो suppose भी at time T is equal to T भी कुछ टाइम बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो बीत गया तो हमने उसको टाइम t ले लिया. तो सपोज वहाँ पे जो x अमाउंट है a में से वो क्या होगी, रिएक्ट कर चुकी है. तो मीन्स वी कैन से द x अमाउंट ऑफ p हैज़ बीन फॉर्म्ड एट टाइम t इज इक्वल टू t. तो उस टाइम पे हमारे पास जो a की कंसंट्रेशन बचेगी वो कितनी होगी, a माइनस x. ओके, सो इनिशियली वी हैव द a मोल्स पर लीटर. आफ्टर टाइम t, at time t we have the concentration of a as a minus x moles per liter. Okay, so according to law of mass action, the rate of this reaction, the rate of reaction will be directly proportional to the concentration of a only, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम. और वी कैन राइट द dx अपॉन dt would be directly proportional to the a minus x, or we can write it as a k a minus x. So what is k here? K is the rate constant or specific reaction rate for the first order reaction. Okay, so this is the differential equation for the first order reaction. So on rearranging this equation we can write the dx upon a minus x is equal to k dt. Okay, now suppose this is equation number 1. Now if we integrate this equation we can write dx upon a minus x is equal to integration of k dt. ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt plus I. So what is I? I is the constant of integration. So what would be the value of this constant of integration? We can calculate this by taking the initial concentration. So we said that when t is equal to 0, the initial concentration is A, means at that time x was equal to 0. Okay, now substituting these values in this equation, so let it be equation number 2. Now putting the value of t and x here in equation number 2, we will having minus log of a minus 0 equals to k into 0 plus I. Okay, so क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस log of a is equal to I. So we have the value of I is equal to minus log of a. Now substituting the value of I here in the equation number 2, we will get minus log a minus x is equal to the kt minus log of a, or we can write the log of a minus x is equal to minus kt plus log of a, or further we can write the kt is equal to log of a minus log of a minus x, which is further equals to log of a upon a minus x. Okay, so from this equation we can write the k is equal to 1 upon t log of a upon a minus x. So from that we can calculate the rate constant for the first order reaction. So further we can further simplify it as k is equal to 2.303 upon t log
A upon A minus X. Okay, so this is the final equation for the rate constant for first order reaction. Okay, so let it be equation number 4, and above equation is equation number 3. Okay, so this equation number 4 can be written in an alternative form as, if we put the initial concentration is equal to A naught, or we can also put it as a C naught. C is the concentration, and we can also put A minus X as simply A or simply C. Okay, if we put the A is equal to C naught and A minus X as C, so we will get the K is equal to 2.303 upon T log of C naught upon Ct. So this is equation number 5. Okay, or what we can write, the Kt is equal to natural log C naught upon C. ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6. क्या हुआ कि हमने 2.303 लॉग को हमने क्या लिख लिया, नेचुरल लॉग लिख लिया, और टी को हमने के कैसा मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी विल हैव द के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी. तो इससे हम एक एक्सपोनेंशियल टर्म बना सकते हैं. एक तो पहले हम इसको इस तरीके से लिखें कि लॉग सी टी अपॉन सी नॉट लिख दें, मीन्स इसको हम रिवर्स कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस के टी. और अगर हम एंटी लॉग ले लें बोथ साइड, सो वी विल हैव the Ct upon C naught is equal to e raised to power minus Kt. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, और फ्रॉम दैट वी कैन राइट the Ct is equal to C naught e raised to power minus Kt. So this is the exponential form of the first order kinetics. So let it be equation number 7. So this is very useful form of the integrated first order rate equation. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हमें क्या देगा, कंसंट्रेशन देगा रिएक्टिंग स्पीशीज की एट टाइम सी टी. ठीक है, डिफरेंट टाइम पे हमारे पास क्या आ जाएगी, सी कंसंट्रेशन आ जाएगी जो रिएक्टेंट है, अगर हमारे पास वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमें वहाँ पता हो. ठीक है, और रेट कांस्टेंट पता हो. अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है, इनिशियल कांस्टेंट पता है, तो हम डिफरेंट टाइम पे क्या करते हैं, टी की वैल्यू पुट करके यहाँ पे इनिशियल उसकी जो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, हम वो डिस्कस करने वाले हैं. देखो, हमने अब 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की. कौन कौन सी हैं? एक तो है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. सेकेंड हमने पढ़ी है भी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी. दोनों वैसे सेम ही हैं. ठीक है, और थर्ड हमने एक इंटीग्रेटेड जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ी है, दैट इज सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस के टी. ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस का क्या मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन इन तीनों में से किसी भी एक रिएक्शन को किसी भी एक इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी. ठीक है, सो अब हमने बात करनी है कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है भी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही है. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक मेथड्स होते हैं. उन मेथड्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है. तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन इजिली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब होता क्या है इसमें कि कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही होगी तो या तो वो ये इक्वेशन फॉलो करेगी या ये करेगी या ये करेगी. तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं कि अगर सपोज हमारी वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है तो उसमें जो के आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स. और वी कैन यूज दिस इक्वेशन दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी. ये यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें है क्या, कुछ नहीं है कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिफरेंट टाइम पे हम क्या करेंगे, उस रिएक्टेंट को उस रिएक्शन में से हम जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसको निकालेंगे, रिएक्शन को स्टॉप करेंगे. स्टॉप करने के बाद क्या करेंगे, हम
बाय एनी मीन्स, मतलब हमारे पास क्या है, कोई अगर टाइट्रेशन है या ग्रेविमेट्रिक है, वहां से हम क्या करेंगे, उसकी उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन बाकी बच गई है वो निकालेंगे। ठीक है, वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो के है वो क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आ रही है, तो मींस वो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द नॉन कंसंट्रेशन दैट इज ए, और यू कैन से C0। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज A-X और CT, ठीक है, can be noted at different interval time. So value of CT and C0 can be put it in this formula, and from that we can find out the value of K. If the K comes out to be constant, then the reaction is of first order kinetics. ठीक है, एक तो मेथड ये है कि हम डिफरेंट टाइम पे उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नोट करते जाएं और उसमें पुट करते जाएं, उसके बाद हम K को कैलकुलेट करते जाएं। अगर हमारा K वहाँ पे कांस्टेंट आता है तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा तो वो कुछ और ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास आएंगी उसको हम डायरेक्टली प्लॉट ना करके, डायरेक्टली इसमें पुट ना करके हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 अपॉन CT। ठीक है, या फिर A अपॉन A-X वाला, इन दोनों में से कोई पुट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.303 log ऑफ C0 अपॉन CT। ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम फर्दर इसको ओपन करें, सो KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log C0 माइनस CT लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसको हम, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाए इसको हम, तो क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे भी क्या है हमारे पास log CT। तो log CT विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ K अपॉन 2.303 इंटू T प्लस log C0। ठीक है, सो दिस इज Y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो M क्या है हमारा यहाँ पे, दिस इज द M माइनस K अपॉन 2.303 दैट इज M। सो ओके, तो दिस विल बी द स्लोप ऑफ द आवर ग्राफ, एंड this C that is the intercept which will give the value of log C। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका हमारा जो ग्राफ आएगा वो हम ग्राफ किस में प्लॉट करेंगे, टाइम दैट इज T, और यहाँ पे हम log ऑफ CT, मीन्स जो हमारी डिफरेंट टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन आएगी उसका हम log लेके इस ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे। तो इनिशियली हमारे पास जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। सो सपोज वो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। ठीक है, सो दैट विल बी द इंटरसेप्ट, सो इट विल बी इक्वल टू log C0। ओके, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रिएक्शन में हमारी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है, थोड़ी देर बाद फिर डिक्रीज करेगी, उसके बाद फिर डिक्रीज करेगी, अल्टीमेटली क्या है वो इस तरीके से डिक्रीज करती जाएगी। तो यहां से हमारा जो है ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हमारा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस K ऑफ 2.303। ओके, सो इसको हमने कंपेयर किया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से और ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ से हमें स्लोप मिल जाएगा और जो है इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, तो जो भी हमारी रिएक्शन है उसकी जो CT की वैल्यू हमारे पास आती रहेगी, डिफरेंट टाइम पे जो हम कंसंट्रेशन नोट करते रहेंगे उनको हम वैल्यू पुट करके K ना कैलकुलेट करके हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से डिक्रीज करता है और स्प्लिट एंड ग्राफ देता है, ठीक है, तो मीन्स वो हमारी जो रिएक्शन है दैट इज फॉलोइंग दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो ये हमारा दूसरा मेथड है जहां से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो काइनेटिक्स है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट नोन। सपोज हमारे पास जो A है या C0 है वो पता नहीं है, मीन्स हमने रिएक्शन स्टार्ट कर ली और हम उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है नोट करना भूल गए। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू नहीं है और C0 की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो भी ईजी है। तो हम जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जो कि हमारे पास ये है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A-X, इसको यूज करके फिर भी कर सकते हैं अगर A हमारा नहीं गिवन है।
ठीक है, वो कैसे? सपोज हमारे पास हमने जो रिएक्शन चल रही है उसमें से रिएक्टेंट का हमने कुछ अमाउंट ले लिया कुछ टाइम बाद, तो सपोज वहां पे टाइम क्या था, T1 था, ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो उसकी कंसंट्रेशन है दैट इज A माइनस x1। अब A की वैल्यू हमें नहीं पता, बट जो A माइनस x है हमारे पास वहां पे आ गया, ठीक है, जो वो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी। तो कुछ टाइम बाद सपोज ये 10 मिनट्स पे लिया था हमने, ये 20 मिनट्स पे ले लिया, तो इट इज T2। तो उस टाइम हमारे पास क्या आएगा, जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी दी A माइनस x2 आ जाएगी, ओके। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे, मीन्स हम वहां पे K1 और सॉरी K लिखेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2.303, टाइम क्या आएगा हमारे पास T1, यहाँ पे आ जाएगा log दैट वुड बी दी A जो कि कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या है, तो A माइनस x1 यहाँ पे आ जाएगा, दिस वुड बी दी फर्स्ट इक्वेशन। एंड फर्दर सेकंड इक्वेशन के लिए भी K क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है तो K की वैल्यू क्या रहेगी, उसकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो 2.303 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, तो दैट वुड बी log A अपॉन A माइनस x2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे, K अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ A माइनस x2 प्लस log ऑफ A माइनस x1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, ठीक है जी। तो फर्दर वी कैन राइट जो हमारे पास था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता हमें या नहीं गिवन हमें, तो भी हम जो है रेट कांस्टेंट उसका निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर हम इसको कहें कि हमारे पास जो T1 था वो C1 है और T2 पे अगर हमारे पास C2 है, मीन्स अगर हम इसको C1 पुट कर दें, इसको C2 पुट कर दें, कंसंट्रेशन 1 और कंसंट्रेशन 2, तो हम वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो है दैट इज 2.303 T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, log C1 अपॉन C2 आ जाएगा। व्हाट इज C1? C1 इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T1, व्हाट इज C2 इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T2, ओके। और फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें, यहां पे हम लिखते हैं log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, ठीक है। और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वर्सेस हम T2 माइनस T1 के, मीन्स इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम टाइम के साथ, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो क्या आ गया, दैट वुड बी दी T2 माइनस T1 है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है log ऑफ C1 अपॉन C2, ठीक है, और A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका ग्राफ जो रहेगा दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप रहेगा दैट वुड बी दी K अपॉन 2.303 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास दो चीजें रहती हैं, एक तो रहते हैं यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, दूसरे रहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है? तो हाफ लाइफ पीरियड इज नथिंग बट द टाइम, ठीक है, at which the concentration of the reactants reduced to half of its original value. So we can say the half life of a reaction is the time required for the concentration of the reactant to reduce half of its original value. तो उस टाइम जो हमारा टाइम होगा उसको हम T half लिखते हैं, ठीक है, मीन्स T half is the time for the reaction to half completed. Okay, so as we have the integrated rate equation, that is T is equal to 2.303 अपॉन K, हमने क्या किया, K को नीचे लेके T को बाहर लिख दिया। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ, log A अपॉन A माइनस एक्स है, ठीक है। तो जब हमारे पास टाइम क्या होगा, T हाफ हो जाएगा, मीन्स हाफ लाइफ जो है रीच हो जाएगी। तो जैसे कि हमने कहा वहाँ पे कि वहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है दैट रिड्यूस टू दी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू,
मीन्स उस केस में जो x होगा दैट वुड बी दी a/2 हो जाएगा, मीन्स हाफ वो रिएक्ट कर चुका होगा. ओके, नाउ putting the value that is t is equal to t half and x is equal to a/2 here in this equation, we can get the t half. ठीक है, so it will be equal to 2.303 upon k log of a upon a minus a/2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a minus a/2 क्या आएगा, a/2. so a upon a/2 that is 2. so we will have the 2.303 upon k log of 2. ठीक है, so what is log of 2? it is the 0.3010. ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 into 0.3010 upon k, it will be equal to 0.693 upon k. ठीक है, तो this would be the half life period for the first order reactions and which is independent of the initial concentration. ठीक है, initial concentration कुछ भी हो, ठीक है, तो t half हम क्या है easily निकाल सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई और फ्रैक्शन टाइम दिया हो, मीन्स अगर हमें पूछा जाए भी t1/3 निकालो या t2/3 निकालो, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं. अगर हम बात करते हैं भी t1/3, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, a1/3 रहेगी. मीन्स वहाँ पे हमारे पास जो है 1/3 रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी होगी. ठीक है, सो व्हेन वी पुट द t इज इक्वल टू t1/3, x इज इक्वल टू a/3, सो वी विल बी हैविंग the 1/3 टाइम जो है हमारे पास दैट वुड बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे बस a माइनस a/3. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k, क्या आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ a माइनस a/3 क्या करेंगे तो क्या करेगा 2/3. ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया log 3/2. ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास सपोज को लो भी nth टाइम दिया हुआ है हमें, इन जनरली अगर पूछा जाए कि हमारे पास t1/n है, मीन्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे nth टाइम दे दिया हमें कि कितना हमारे पास वहाँ पे वो हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज ए 2.303 अपॉन k log ऑफ a अपॉन a माइनस a/n. ठीक है, so from that we can write t1/n is equal to 2.303 k log 1 upon 1 minus 1/n. ठीक है, so कुछ भी अगर आपको गिवन है n की वैल्यू कुछ भी हो, तो हम इजिली जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो टाइम होगा हम वो निकाल सकते हैं. सपोज हमारे पास n की वैल्यू क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t हाफ हो जाएगा. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 हेयर, इट इज 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ अगेन. तो 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो log 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था पीछे. ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में फिर से ये आ जाएगा. तो फ्रैक्शनल लाइफ पीरियड कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेदर ए गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और नॉट. ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन को फाइंड आउट करने में. ओके, कि उसकी काइनेटिक्स क्या है. तो नेक्स्ट इज द यूनिट्स. सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So from again using that relation we can easily find out the units. Okay, so यहाँ पे हमारे पास जो k है that is directly proportional to the a and inversely proportional to the a minus x. Both are the concentration terms. Okay, and it is also inversely proportional to the 1/t. ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/t रह जाएगा. तो द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 1/टाइम. ठीक है, तो टाइम अगर सेकंड में गिवन है तो इट विल बी सेकंड इनवर्स, अगर मिनट्स में गिवन है तो इट विल बी मिनट इनवर्स, अगर आवर्स में गिवन है तो इट विल बी आवर्स इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Next we have some examples for the first order reaction that I will discuss in next lecture in detail. बहुत सारी reactions हैं, उनकी हम kinetics भी देखेंगे कैसे study कर सकते हैं. Okay, so if you have any doubt in this topic, so you can ask me here.